أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهبني الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولا فأعن واصرف عني الجهل يا ذا المنة يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور ہم اس سے معافی اور مدد طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جس سے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں. اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں وہ اللہ کی طرف سے اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے. سورۃ النور چل رہا تھا، 18 پارے کا سیکنڈ پارٹ کریں گے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ تم پیروی کرو خدموں کے شیطان کی، اور جو کوئی پیروی کرتا ہے شیطان کے خدموں کی تو بے شک حکم دیتا ہے بے حیائی کا اور منکر. مطلب شیطان کو فالو نہ کریں کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور برائی کا حکم دیتا ہے. اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور اس کی رحمت نہ پاک ہو سکتا تم میں سے کوئی ایک کبھی بھی، لیکن اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، علم والا. اور نہ قسم صاحب فضل تم میں سے کہ نہ کہ اور وسعت والے کہ نہ وہ دیں گے رشتہ داروں کو اور مسکینوں کو اور مہاجرین کو اللہ کے راستے میں، اور چاہیے کہ معاف کر دے اور چاہیے کہ درگزر کرے. یہاں پر دیکھیے اس واقعے کا جو واقعہ عفق کا جو ہم نے پڑھا تھا کہ جہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جب تہمت لگائی تھی اس میں سے جو ہے سنا کچھ ایسے ان کے رشتہ دار بھی تھے جس کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے سنا ہیلپ کیا کرتے تھے. تو جیسے ہی انہوں نے تہمت لگائی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا لی تھی کہ اب وہ ان کو کوئی ہیلپ نہیں کریں گے، ان کی کوئی مدد نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ آپ ہے نا کہ مطلب ایسی قسم مت کرو کہ مطلب یہ مت کہو کہ مطلب فضل والا یہ نہیں کہے کہ میں اب ان کو مسکینوں کو ملوں کو نہیں دوں گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہیے کہ درگزر کر دے اس کو. کیا نہیں پسند کرتے تم اللہ کے اللہ تعالیٰ معاف کر دے تمہاری، اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم. مطلب جس طرح تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے تم بھی کیا کرو معلوم ہے لوگوں کو معاف کر دو. بے شک وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر یعنی جو بے قرار ہے مومن عورتوں پر ملامت کیے گئے ہیں دنیا میں اور آخرت میں، اور ان کے لیے عذاب ہے بڑا. دیکھیں دنیا میں بھی ملامت ہوگی اور ان کو آخرت میں بہت بڑا عذاب ہوگا. جس دن گواہی دے گی ان کے خلاف ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں باوجود اس کے جو تھے وہ عمل کرتے. جس دن پورا دے گا ان کو اللہ تعالیٰ ان کا جزا برحق، اور وہ جان لیں گے کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہی حق ہے کھلم کھلا. اور اللہ تعالیٰ کے کہہ رہے ہیں خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہے، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہے. یہی لوگ پاک ہے اس سے جو وہ کہتے ہیں ان کے لیے بارے میں بخشش ہے اور اس کا عزت والا. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مطلب پاک لوگوں کے لیے پاک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاک تھے تو ان کی بیوی ناپاک ویسے کیسے ہی ہو سکتی ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ تم داخل ہو گھروں میں. یہاں پر گھروں میں انٹر ہونے کے ایٹیکیٹس بتا رہے ہو. اے لوگوں جو ایمان لائے، نہ تم داخل ہو گھروں میں سوائے اپنے گھروں کے، مطلب اپنے یہاں تک کہ تم انس حاصل کر لو اور سلام بھیجو ان کے گھر والوں پر. یہ بات بہتر ہے تمہارے لیے شاید کہ تم نصیحت پکڑو. کہا جا رہا ہے کہ مطلب وداؤٹ پرمیشن کسی کے گھر میں انٹر مت ہو. جیسا سرپرائز دینے لوگوں کا عادت تو سرپرائز دینے کے لیے پیچھے سے گھس گیا ایسا کرو ویسا کچھ بھی نہیں کرنا ہے. اور کیا کرو ان کو سلام بھیجو. پھر اگر لم نہیں تم پاؤ ان میں سے کوئی کسی ایک کو تو نہ تم داخل ہونا یہاں تک کہ اجازت دیجیے. مطلب عالی ایسی انٹر مت ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ ملے. پھر اگر یہ کہا جائے کہ تمہارے لیے کہ پلٹ جاؤ تو پلٹ جاؤ، وہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے. اگر مطلب
मतलब वहाँ पर कोई है भी लेकिन ये बोले कि नहीं सॉरी वी आर बिजी, हम नहीं मिल सकते, कुछ भी ऐसा हो तो वहाँ पे पलट जाओ, तो ये ज्यादा पाकीज़ा है तुम्हारे लिए। साथ उसके जो तुम अमल करते हुए वाले, मतलब ये ना समझो कि अरे हमारी बेइज्जती कर देंगे, अल्लाह ताला कह रहे हैं ये अच्छा है, अगर वो परमिशन नहीं दे तो मत जाओ, नहीं तुम्हारे लिए तुम पर कोई गुनाह के तुम दाखिल हो ऐसे घरों में न रहने वाले, उसमें फायदा है तुम्हारे लिए। मतलब अब जहाँ पर कोई पब्लिक प्लेसेस है जैसा कोई हॉस्पिटल्स है या फिर स्टेडियम्स है या फिर कोई मॉल्स है वगैरह, वहां पे एंटर होने के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है, तुम वैसे हो सकते हो। और अल्लाह ताला जानता है जो तुम जाहिर करते हो, जो तुम छुपाते हो, कह दीजिए मोमिन मर्दों से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पर्दे की बात हो रही है और इसमें देखिए कि औरतों को पर्दे नजर नीचे करने से पहले अल्लाह ताला मर्दों को कह दीजिए मोमिन मर्दों से बचा के रखे अपनी निगाहों में से हिफाजत करे अपनी शर्मगाहों की, ये बात ज्यादा पाकीज़ा है तुम्हारे लिए। बेशक अल्लाह ताला खबर रखने वाला जो वो करते हैं। मतलब पहले मर्दों को कहा गया कि अपनी नजरों को नीचे रखे और अपनी शर्मगाहों की क्या करे, हिफाजत करिए। और कह दीजिए मोमिन औरतों को झुकाए रखे अपनी निगाहों में से और हिफाजत करे अपनी शर्मगाहों की। देखिए यहाँ पे थर्ड एक्स्ट्रा इन लोगों के लिए, और ना वो जाहिर करे अपने बनो सिंगार मगर वो जो जाहिर हो जाए उसमें से, मतलब अपनी ब्यूटी अपना मेकअप वगैरह किसी और के सामने ना जाहिर नहीं करे, मगर वो जो जाहिर हो जाए उसी में से ना, वो एक्सेप्शन है। जैसा कि हम पर्स कैरी कर रहे हैं या कुछ ऐसा ये है तो वो ठीक है, जाहिर हो जाए उसमें से। और चाहिए कि वो डाले रखे अपने ओढ़नी अपने गिरेबानों पर, और ना जाहिर करे अपनी जीनत को मगर अपने शोहरों के लिए। ये बता रहा है कि अपनी जीनत अपनी ब्यूटी जो है सना उसके अपने शोहरों के, और यहाँ पे बता दिया लिस्ट दी गई इनके अलावा किसी और के सामने नहीं करे। किसके ऊपर जाहिर कर सकते हैं? अपने शोहरों पर, अपने बापों के लिए, अपने शोहरों के बापों के लिए, ससुर के लिए के भी ये हो सकते हैं, या अपने बेटों के या उनके शोहरों के बेटों के लिए, या अपने भाइयों के लिए या भाइयों के बेटों के लिए, या उनके बहनों के बेटों के लिए, यानी भतीजे भांजे, और या वो औरतें या जो मालिक है उनकी दानियत यानी गुलाम औरतों के लिए बात हो रही है। या पैरवी करने वाले हैं ला हाजात को मर्दों में से, मतलब कोई मर्द में से कोई बूढ़े हो गए ऐसे हो गए, मतलब कोई अब उनको कोई ख्वाहिश नहीं है इसके वैसे लोगों के साथ, या बच्चे वो जो नहीं जाहिर हुए बातों पर औरत की छुपी, मतलब छोटे बच्चे हैं जिनको औरतों के ऐसी चीजों के बारे में कोई ऐसी चीजों के बारे में आते हैं तो उनके सामने औरत बड़ा श्रृंगार करके जा सकती है, अपनी जीनत को का इजहार कर सकती है। और ना मारे अपने पाँवों को की जान लिया जाए, मतलब जैसा कि हाई हील्स पहनकर या टिकटॉक कर हाई हील पहनकर टिकटॉक कर रहे, या जो है सुना कि घुंघरू पाजेब वैसा चेंज कर ये कर रहे, तो वैसा मत पाँवों को मत मारो। और ना वो मारे अपने पाँवों को कि जान ली जाए कि जो छुपाता है अपनी जीनत में से तौबा करो तरफ अल्लाह के सबके सब अय्युहल मोमिन, मतलब जो पहले मोमिनो, ताकि तुम फला पा जाओ। और निकाह करके दे दो तन्हा लोगों को तुम में से, और साले गुलामों में से और बांदियों में से, और अगर वो हो मोहताज तो गनी कर देगा अल्लाह ताला उनको अपने फजले से, और अल्लाह ताला वसत वाला है इन वाला। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो भी है, जैसा कि जो तन्हा है, मतलब जो कोई कुंवारे है, डिवोर्सीज है, बेवा है, मैंने हो या आदमी हो, तो उनको सिंगल मत रखो, बल्कि क्या करो उनका निकाह करके दे दो। तो और अपने गुलामों में से भी जिसको अगर तुम उनके अंदर कोई निकी पाते तो उनका गुलाम और लौंडे में से भी क्या करो उनका निकाह कर दो। अल्लाह ताला फजले देता, अल्लाह ताला गनी कर देगा जिसको वो चाहेगा। अल्लाह ताला बहुत वसत वाला है इन वाला है। और चाहिए कि पाक दामन इख्तियार करे वो लोग नहीं वो पाते निकाह का, मतलब किसी की वजह से वो निकाह नहीं कर सकते, वो पाकिस्तानी इख्तियार कर, यहाँ तक कि गनी कर देगा उनको अल्लाह ताला अपने फजल। और हदीसों में भी बताया गया कि ऐसे लोग क्या करें, रोजे रखने, इसका मतलब हल बताया गया। और वो लोग जो चाहते हैं कि लिखा पढ़ाई करे उसमें से जो मालिक हो उनके दायरे में है, कालिबत कर लो, अगर जान लो तुम उनमें कोई भरेगा। अगर के तुम्हारा गुलाम लौंडी है, वो मतलब अपनी आजादी किसी ये कर अपना कुछ पे करके करा के अपनी आजादी करना चाह रहे हैं, तो क्या करो उनकी, अगर तुम भलाई पालो तो क्या करो उनकी आजादी उनको दे दो। वो और दो उनको अल्लाह के माल में से वो जो उसने दिया तुमको, और ना तो मजबूर करो अपने बांदियों को और बांदियों को बदकारी के दौरे जहालत में क्या होता था, लोग क्या करते थे, जो गुलाम बांदियां लौंडियों को ला लेते थे ना, उन लोगों से क्या करते थे, बदकारी का काम, जिना वगैरह कराते थे, उस सेक्स के वगैरह कराते थे उस चीज से यहाँ पर। और क्या वो चाहे कि परहेजगारी करे तो ताकि तुम तलाश करो दुनिया की जिंदगी का सामने, माल के लिए करने के लिए उनका यूज मत करो। और जो कोई मजबूर करेगा उनको तो बेशक अल्लाह ताला उनकी मजबूर करने के बाद अल्लाह ताला गफूर, मतलब जो औरतें जिस पर जो गुलाम लौंडियों वगैरह पर अगर जुल्म किया गया, मतलब जबरदस्ती कर उनसे कोई गुनाह करा गया, तो अल्लाह ताला उनके लिए गफूर और रहीम है। अलबत्ता तहकीक नाजिल कर दिया हमने तुम्हारी तरफ खुली आयतें और मिसाल उन लोगों के लिए जो गुजर चुके तुमसे पहले, और नसीहत तकवा वालों के लिए।
जो आयत आ रही है ना, अल्लाह के नूर होने की बात हो रही है, इसी वजह से देखिए जो अल्लाह, ये सूरत का नाम है अल्लाह ताला नूर है आसमानों का और जमीन का, मिसाल उसके नूर की मानंद एक ताके है, मतलब यहाँ पे ताके उसमें चिराग है, चिराग फानूस में, और फानूस गोया कि एक तारा है चमकता है और रोशन किया गया एक दरख्त से बरकत वाले जैतून के, ना शर्क मशरिकी है ना मगरिबी है, करीब है कि उसका तेल रोशन हो जाए, अगर ना चाहे छुए उसको कोई आग, तो नूर है नूर पर रहनुमाई करता है अल्लाह ताला नूरी अपने नूर की जिसको वो चाहता है, और वो बयान करता है अल्लाह ताला मिसालें लोगों के लिए, और अल्लाह ताला साथ हर चीज के जानने वाला है कि अल्लाह ताला के नूर होने की बात है। अल्लाह ताला खुद भी रोशन है और दूसरों को भी रोशन करते हैं। अब इसकी मिसाल ऐसे दी गई जैसा कि कोई एक समझिए एक मेहराब है, मेहराब में एक कंदील चिराग रखे हुआ है, चिराग में है जना, उसके ऊपर फिर वो चिराग के ऊपर एक ग्लास का वो भी लगे हुआ है, फिर उसमें बत्ती है और नीचे जैसा तेल है। तो ये जो पूरा यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जैसा कि इंसान का सीने में जो है सोना, फिर सीने में क्या, इंसान के सीने में देखिए इंसान का दिल है, और अगर वो दिल में अगर फानूस हो यानी रोशनी, इल्म की रोशनी मिल जाए तो क्या होता है, वो नूर क्या होता है, तो फिर अगर उसको हिदायत मिल जाए तो क्या होता है, वो और चमक उठता है, बल्कि बारे में बताया जा रहा है। और अल्लाह ताला जिसे चाहे अपना नूर अता कर। और यहाँ पर देखिए अब यहाँ पे घर में एंटर होने की टिकट, फिर बुयूतिन घरों में इजाजत दी अल्लाह ने कि बुलंद किया जाए उसका जिक्र, और उसमें उसका नाम तस्बीह करते हैं उसके साथ सुबह और शाम। यहाँ पे सुबह शाम अल्लाह ताला की तस्बीह की जाए। कुछ लोग नहीं गाफिल करता कोई तिजारत और न कोई खरीदो फरोख्त अल्लाह के जिक्र से, और कायम करते हैं नमाज को और देते हैं ज़कात को। वो डरते हैं उस दिन से उलट पुलट हो जाएंगी उस दिन निगाहें, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो है ना, जिनको जो तिजारत बिजनेस कोई चीज भी अल्लाह ताला के जिक्र से नहीं रोकते, वो लोग क्या करते हैं, टाइप पे नमाज पढ़ते हैं, ज़कात अदा करते रहते हैं, ठीक है, और क्या क्या और क्या वो मतलब अल्लाह ताला से जिस दिन उलट पुलट निकालते हैं, मरने के उठने वाले दिन से वो लोग क्या करते हैं, डरते हैं, ताकि बदला ताकि जज़ा दे अल्लाह ताला उनको बेहतरीन जो उन्होंने अमल किया, और ज्यादा दे उनको अपने फजल में से, और अल्लाह ताला रिज़्क़ देता है जिसको वो चाहता है बगैर हिसाब के। और वो लोग जिन्होंने कुफ्र के अमाल उनके मानिंद शराब के हैं, एक चटियाल मैदान में समझता है उसको प्यासा पक्के पानी है, मतलब जो लोग जो है बिना ईमान के कोई नेक अमल करते हैं उनके जैसा एक जैसा समंदर, जैसा सहरा में अगर प्यासा पानी को ढूंढता तो रास्ते में जाते दूर से ऐसा दिखता है कि मिराज है, लेकिन क्या हम वहां पर कोई कुछ नहीं रहता। तो इसी तरह से उनके पूरे अमाल जो है ना, उनके जो किए हुए अमाल क्या होते हैं, पूरे जाया हो जाते हैं जो बैना अमाल की उन्होंने किया था। यहाँ तक कि जब आती है उनके पास आता, उसके पास नहीं पाता उसको कुछ भी, और पाता है अल्लाह ताला को उसके पास, फिर पूरा देता है उसको, उसकी किसका हिसाब और है अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाला। ये या मानी नजरों के है जो या मानी नजरों के समंदर में गहरे ढांप लेती है, उस पर एक लहर, उसके ऊपर से एक मौज, और उसके ऊपर से बादल अंधेरे हैं, उसमें उनमें से बाज पर, मतलब एक गुनाह के ऊपर दूसरा गुनाह करता जाता है। जब निकालता है अपना हाथ, नहीं का करीब है कि वो देख सकते हैं, मतलब हिदायत वो जब अपना हाथ निकालता है तो वो अपना हाथ तक नहीं दे सकता। और जो नहीं बनाया अल्लाह ताला ने उसके लिए कोई नूर, मतलब जिसको अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता तो नहीं उसके लिए कोई नूर, मतलब कोई हिदायत नहीं, क्या नहीं तो तुमने देखा बेशक अल्लाह ताला के लिए तस्बीह कर रहे हैं, उसके लिए जो कुछ आसमानों में जमीन में और परिंदे साफ बनाए हुए, कुल हर एक की तहकीक जन्ने जान लिया अपने नमाज का तरीका और उसकी तस्बीह को, मतलब अल्लाह ताला की क्रिएशन जितनी भी है ना, सबसे सब अल्लाह ताला की तस्बीह और अल्लाह ताला की अपना है, हर एक का अपने नमाज पढ़ने का जरिया तरीका है, लेकिन हम उसको नहीं जानते। और अल्लाह ताला इल्म वाला है साथ उसके जो वो करते हैं, और अल्लाह के लिए बादशाह आसमानों की और जमीन की है, और अल्लाह की तरफ लौटना है। क्या नहीं तुमने जाना बेशक अल्लाह ताला चलाता है बादल को, फिर मिला देता है उसके दरमियान, फिर कर देता है उसको तैबत है, और तो तुम देखते हो बारिश को कि खतरा कहते मतलब कि बारिश है ना बिल्कुल बादल जैसे मोटे मोटे वैसा नहीं गिरती, बल्कि अल्लाह ताला खतरों की तरफ में बारिश गिराता है, निकालता है उसके अंदर से, और वो नाजिल कर देता है आसमान से बावजूद उसके जो पहाड़ों के उसमें से ओलो में से फिर पहुंचाता है उसको जिसको वो चाहता है।
और फिसला देता है जिससे वो चाहता, मतलब जिसको जैसे कि कई बार बादल आते हैं, सब होता है, ऐसा लगता है कि बारिश होगी, लेकिन जब कहीं नहीं होता, लगता है जिसको जब बारिश देना है, जहां देना है बारिश देता है, उसके बाद फिर हटा देता है। उनके चाहे कि वो खलीफ है कि चमक ली जाए, उसको बिजली निगाहें उलट पुलट करता है अल्लाह ताला रात को और दिन को। बेशक इसमें अलबत्ता इबरत है निगाह वालों के। अल्लाह ताला दिन रात और दिन का जो फेरा है ना, जो देखते हैं ना, वो लोग इससे भी इबरत हासिल कर सकते हैं। और अल्लाह ताला पैदा करता है, अल्लाह ताला ने पैदा किया हर जानवर को पानी से, फिर उसमें से बाज जो तुम चलते हैं अपने पेट के में, पेट पे, मतलब जैसे अर्थवॉर्म है, टोर्टोइस वगैरह वो लोग, सांप वगैरह अपने पेट के ऊपर चलते हैं। उनमें से बाज जो चलते हैं 2 पांव पर जैसा कि इंसान है, और उनमें से बाज जो चलते हैं 4 पांव पर जैसा मवेशी है, घोड़े, शेर वगैरह सब ये है। यखलुक वो पैदा करता है, अल्लाह ताला की डिफरेंट किस्म अल्लाह ताला पैदा करता है जो वो चाहता है। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। अलबत्ता की नाजिल किया हमने जो आयतें वाज़ी, और अल्लाह ताला हिदायत देता है जिसको वो चाहता है इला सीधे रास्ते की तरफ। और वो कहते हैं कि ईमान लाए अल्लाह पर और साथ के रसूल पर, वो इताअत की हमने, फिर वो मुंह मोड़ते हैं एक ग्रोह उनमें से। बाद इसके बाद यहाँ पे मतलब मुनाफिकीन की बात हो रही, कहते हैं कि ईमान लाए, फिर उसके बाद मुंह मोड़ते थे। और नहीं, ये वो लोग भी ईमान लाने वाले लोग, क्या ये मुनाफिक है, ईमान लाने वाली है, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए ईमान ला रहे हैं। और जब बुलाए जाते हैं अल्लाह की तरफ, उसके रसूल की तरफ, ताकि वो फैसला कराएं आपस में, जब वो एक ग्रोह में से एराज बरतता है, मतलब अल्लाह ताला को के मुंह दिखाने के लिए तो कहते हैं कि हम ईमान लाए, लेकिन जब फैसले के लिए उनको बुलाया जाता है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आके कुरान और सुन्नत के थ्रू फैसला करो, तो क्या करते हैं वो लोग इससे एराज बरतते हैं। और अगर वो है उनके लिए हक तो आएंगे इसी की तरफ होकर, मुती होकर, मतलब अगर उनके फायदे की कोई चीज होती है तो उस तरफ आ जाते हैं। क्या उनके दिलों में कोई बीमारी है या कोई शक में है, या वो डरते हैं कि वो जुल्म करेंगे अल्लाह उन पर, मतलब और उसका रसूल वो कहते हैं, मतलब कह रहे कि क्या उनके दिल में कोई शक है, कोई बीमारी है, या उनको ये बात का डर है कि अल्लाह और उसका रसूल उन लोगों के साथ नाइंसाफी करेगा, बल्कि यही वो लोग है वो जालिम। अल्लाह ताला कह रहे कि यही लोग जालिम है। बेशक आना है बात मोमिनों की जब वो बुलाए जाते हैं अल्लाह की तरफ और उसके रसूल की तरफ, ताकि वो फैसला करे उनके दरमियान के। वो कहते हैं सुना हमने और इताअत की हमने। ये मोमिन ये होते हैं कि जब सुना हमने इताअत की, इताअत कर लेते फौरी। और यही लोग वही है जो फलाह पाने वाले हैं। और जो कोई इताअत करेगा अल्लाह की और उसके रसूल की, और डरेगा अल्लाह से और तकवा करेगा उनसे, तो यही लोग वही कामयाब होने वाले हैं। और उन्होंने कस्में खाएं अल्लाह के साथ, अपनी पक्की कस्में। अलबत्ता अगर तूने हम हुक्म दिया हमको, अलबत्ता वो जरूर निकलेंगे। कह दीजिए ना तुम पर कस्में खाओ। अल्लाह ताला कहते हैं झूठी झूठी कस्में मत खाओ। मुनाफिकों को कहा जाता है वो लोग झूठी झूठी कस्में खाकर क्या करते, बात अपनी साबित करने की कोशिश करते। अल्लाह ताला कहते ना तुम कस्में खाओ, इताअत मालूम है, बेशक अल्लाह ताला खबर रखता है बावजूद इसके जो तुम अमल करते हो। कह दीजिए इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फिर अगर तुम मुंह मोड़ लो तो बेशक उस पर है जो वो उठवाए गए हैं, और तुम पर जो उठवाए गए तुम, और ना तुम इताअत करो। अगर तुम इताअत करोगे कि तुम हिदायत पाओ जाओगे, और नहीं रसूल पर मगर पहुंचा देना है। खुल्लम खुल्ला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मे क्या है, पूरा मैसेज पहुंचा देना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई चीज की रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वादा किया है अल्लाह ने उन लोगों से जो ईमान लाए, तुमने ईमान लाए और अमल किया अच्छे हो, अलबत्ता जरूर खलीफा बनाएगा तुमको जमीन में, जैसा खलीफा बनाए गए थे उन लोगों को जो उनसे पहले थे। और अलबत्ता जरूर साबित करेगा, खत्म रखेगा उनको, उनके सीनों को, और वो जो उनके पसंद किया उनके लिए, और अलबत्ता वो जरूर बदल देगा उनको उनके खौफ के बाद अमन। अल्लाह ताला का वादा है कि जो कोई अल्लाह पर ईमान आएगा, रास्ता और नेक अमल करते हैं, अल्लाह ताला क्या कर रहा है उनको जमीन में खलीफा बनाएंगे। कि अगर आज हम पिट रहे हैं, हम ये नहीं है, तो हमें सोचने की बात है कि जरूर हमारे ईमान में कुछ खराबी, हमारे ईमान में कुछ ये हो गया है, और हमारी अमल साले नहीं है। वो इबादत करेगा मेरी कि ना वो शरीक ठहरेगा मेरे साथ किसी को भी, और जो कोई कुफ्र करेगा इसके बाद तो यही वो लोग है वही फासिक है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर कोई अल्लाह की इबादत करे और शरीक नहीं करेगा, और उसके बाद फिर वो किसी और को शरीक रहेगा, तो वो लोग फासिक है। वह कायम करो नमाज को और ज़कात अदा करो, इताअत करो रसूल की, ताकि तुम रहम किए जाओ। ना समझे वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया कि आजिज करने वाले हैं, जमीन में और ठिकाने ना है उनका आग है, और कितना बुरा लौटेंगे लोगों जो ईमान लाए हो। चाहिए कि इजाजत तलब करे तुम्हें से वो लोग मालिक हुए तुम्हारे दाहिने हाथ, यानी गुलाम,
اور وہ لوگ جو نہیں پہنچے وہ لوگوں کو یہاں پر اب رومس میں انٹر ہونے کے لیے، ماں باپ کی اس کے روم میں انٹر ہونے کے لیے یہاں پہ ٹکے سکھائے جا رہے ہیں کہ مطلب غلام اور بچوں کو چھوڑ کر وہ غلام اور بچے بھی 3 ٹائم پہ پرمیشن لے کے ماں باپ کے روم میں انٹر ہونا ہے۔ دم نہیں پہنچے بلوغت کو کہ تم میں سے کہ ثلاثۃ مرات 3 اوقات پر کون سے 3 وقت پر فجر کی نماز سے پہلے اور جس وقت تم اتار رکھتے ہو اپنے کپڑے دوپہر کے وقت یعنی قال اللہ جب لیتے اس وقت، اور نماز عشاء کے بعد نماز عشاء یہ 3 پردے کے وقت ہے نہیں تمہارے لیے، پردے کے وقت ہے تمہارے لیے نہیں تم پر، اور نہ ان پر کوئی گناہ ان کے بعد کی کثرت سے آئے جائے۔ مطلب یہ چھوٹے بچے غلام کی کئی ضرورت ہوتے ہیں، وہ آتے جاتے رہتے، تو ان 3 ٹائم کو چھوڑ کر وہ کبھی بھی بلا اجازت کے ماں باپ کے کمرے میں یا گھروں میں سے آ جا سکتے ہیں۔ کثرت سے آنے جانے والے تم میں سے بعض کے اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو، اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا، اور جب پہنچ جائے تو تمہارے بچے بلوغت کو تو اور چاہیے کہ اجازت لیا کرے جیسا کہ اجازت لیا کرتے تھے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے۔ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو، اور اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا، مطلب جب وہ بڑے ہو جائے بلوغت کو پہنچ جائے تو جیسا آپ سب لوگ پہلے بتایا نا پرمیشن لے کے آنا، تو اسی طرح سے پرمیشن لینا آنا چاہیے۔ اور بیٹھے رہنے والیاں عورتوں میں سے وہ جو نہیں امید رکھتی نکاح کی تو نہیں ان پر کوئی گناہ کہ وہ رکھ دے کپڑے یا نمائش کرنے والی زینت کی، مطلب ان کا انٹینشن زینت کو نمائش کرنا نہیں ہے بلکہ ان کے اوپر پردے کی تھوڑی رخصتی ہے، اور یہ کہ پاکیزگی اختیار کرے بہتر ان کے لیے، اگر لیکن اس کے بعد بھی اگر پردہ کرنا چاہے تو ان کے لیے زیادہ بہتر، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے جاننے والا ہے۔ نہیں ہے اوپر اندھے کے اور نہ کوئی حرج لنگڑے پر، اور نہ کوئی حرج مریض پر، اور نہ کوئی حرج اوپر تمہارے نفسوں کے کہ تم کھاؤ تو اپنے تمہارے گھروں سے، یا گھروں سے تمہارے اپنے باپوں کے، یا گھروں سے اب تمہارے ماؤں کے، یا گھروں سے تمہارے بھائیوں کے، یا گھروں سے تمہارے بہنوں کے، یا گھروں سے تمہارے چاچاؤں کے، یا گھروں سے تمہارے پھپھوؤں کے، یا گھروں سے ماموں کے، یا گھروں سے خالوں کے، یا جو مالک ہوئے تمہارے اور جن کی کنجیاں مطلب جن کو جو اس کے ریسپانسبل ہے نا وہ بھی کھا سکتے اس کی گناہوں میں سے، یا کوئی دوست کے گھر سے بھی کھا دو، یا تمہارے دوست کے گھر کے، نہیں تم پر کوئی گناہ کہ تم کھاؤ مل کر یا الگ الگ۔ جب پھر داخل ہو جاؤ تم گھر میں تو سلام کرو اپنے نفسوں اوپر، اپنے نفسوں پر دعائے خیر اللہ کی طرف سے بابرکت ہے پاکیزہ، مطلب جب انٹر ہو تو کسی کے گھر میں تو کیا کرو سلام کرو، یہ زیادہ بابرکت ہے۔ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو چاہے کہ تم عقل سے کام لو، بے شک مومن وہ لوگ ہیں جو ایمان لے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول پر، اور جب وہ ہوتے ہیں کہ اس کے ساتھ کسی کام پر اجتماعی جاتے نہیں یہاں تک اجازت، مطلب کسی کام کے لیے جانا ہے تو وہ اجازت کے بغیر نہیں جاتے، بے شک وہ لوگ وہ جو اجازت مانگے، اگر وہ اجازت مانگے آپ سے، یہی ہے وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اس کے رسول سے، پھر جب وہ اجازت مانگے آپ سے تو آپ اپنے بعض کاموں کے لیے تو اجازت دے دیجیے جس کے لیے چاہو آپ ان میں سے، اور بے شک بخشش مانگو ان کے لیے اللہ سے، اور بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ مطلب اگر کسی کام کے لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اگر ان کو کوئی پرمیشن چاہیے وہ مانگ رہے تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ ان کو اگر جس کے لیے چاہو تو آپ اجازت دے دو، اگر وہ لوگ جو ویسے چلے گئے تو ان کے لیے بخشش مانگو نہ، تم سمجھو رسول کو بلانا آپس میں مانند بلانے کے تمہیں سے بعض کو، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے مطلب نام سے کیسا ایسا مت کر کے مت بلاؤ، بلکہ یا رسول اللہ کر اور ہم کے بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے گئے تو درود بھیجے۔ تمہیں سے باعث ہوتا ہے کہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ، جان لیا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو کھسک جاتے ہیں تم سے آڑ لیتے ہوئے، چاہیے کہ وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اس معاملے میں پہنچے ان کو فتنہ یا پہنچے ان کو دردناک عذاب، خبردار۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں اور زمین میں ہے، اور جو وہ جانتا ہے تم اس پر ہو اور تم کس پر ہو، جو جس دن وہ لوٹا جائیں گے اس کی طرح تو وہ بتائے گا ان کو ساتھ اس کے جو وہ عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، جب ہم لوٹ کے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو بتائے گا ہم کیا عمل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے جاننے والا ہے۔ سورۃ النور کمپلیٹ ہوا ہے، اب انشاءاللہ ہم سورۃ الفرقان شروع کریں گے۔ سورۃ الفرقان مکی سورت ہے، اور فرقان کا مطلب ہے فرق کرنے والے، ٹھیک ہے، اچھے برے میں فرق کرنے والے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا بار بار رحم کرنے والا ہے، بہت برکت ہے وہ ذات جس نے نازل کیا فرقان، یہاں پہ فرقان سے مراد قرآن ہے، اس اپنے بندے پر تاکہ وہ ہو جائے جہان والوں کے لیے خبردار۔ وہ ذات اس کے لیے ہے بادشاہ آسمانوں کی اور زمین کی، اور اسی کے لیے ہے، اس نے بنائے اپنے لیے
लिए कोई बेटा और उसके लिए है नहीं कोई शरीक बादशाहत में, और उसने पैदा किया हर चीज को, फिर तकदीर मुकर्रर किया। तकदीर मुकर्रर का नाम यहाँ पे ये पता रहा है कि अल्लाह ताला एक है, उसकी कोई औलाद नहीं, उसने साथ अपने किसी को शरीक नहीं किया, उसने हर किसी की तकदीर मुकर्रर की है, मुकर्रर की है, और उन्होंने बना लिया। उसके सिवा इलाह नहीं वो पैदा कर सकते कुछ भी, और वो पैदा किए हालांकि वो पैदा किए जाते, और नहीं वो मालिक हो सकते अपने नफ्स के लिए कोई नुकसान के और ना किसी फायदे के लिए। मतलब जो लोग शरीक अपने लिए कोई बना लेते हैं वो ना अपना कुछ फायदा कर सकते ना किसी और का कुछ कर सकते, ना फायदा नुकसान के, वो खुद अपने मालिक नहीं है, और नहीं वो मालिक हो सकते और मौत के और ना जिंदगी की, और ना वो दोबारा पैदा करने वाले हैं। और कहा उन लोगों ने जिन्होंने कुफ्र किया था नहीं है मगर ये झूठ है, उसने घड़ लिया उसको कुरान को कहते हैं कि झूठ है जिसने घड़ लिया उसको, और मदद की उसकी यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पर एक कौम ने, मतलब ये बनी इसराइल, वो कहते थे कि बनी इसराइल के किसी एक आलिम से जो ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौज़ुबिल्लाह ये कुरान सीख कर आकर वो उनको सिखाई जाती है दूसरे, तो तहकीक वो लाया जुल्म और झूठ, वो कहते हैं कि जुल्म और झूठ है। बखालू, और तो उन्होंने कहा कहानियां हैं पहलों की, इसने उसको घर लिया है, इसको घर रखा है इसको, तो वो इमला कर दिया जाता है उस पर सुबह और शाम। कहते हैं कि जो सुबह शाम जाके आप उससे सीख कर आते हैं। कह दीजिए नाजिल करदा, ये मतलब ये नाजिल करदा यानी कुरान नाजिल करदा है, नाजिल किया उसको उस जात ने जो जानता है छुपी हुई बात को, और छुपी हुई बात को आसमानों के जमीन के, बेशक वो है गफूर रहीम। और वो कहते हैं कि क्या है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते हैं, मतलब ये फिर एतजाज है कि क्या है रसूल को कि खाता है खाना और चलता है बाजारों में, और क्यों नहीं नाजिल करते होते उस पर फरिश्ते, तो वो होते उसके साथ खबरदार करने वाले, या उसकी डाली जाती उसके ऊपर कोई खजाना, या होता उसके लिए कोई बाग, वो कहते वो खाता उससे, और कहते हैं जालिम नहीं तुम पैरवी करते मगर एक इंसान की सहर जितना नौज़ुबिल्लाह। वो कहते थे कि आप पहले तो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु इंसान क्यों है, एक रसूल इंसान क्यों है, और फिर उनके साथ कहते हैं कि कोई फरिश्ता क्यों नहीं है, फिर उनके पास कोई खजाना क्यों नहीं है, कोई बागात क्यों नहीं है उसमें से वो खाते, फिर कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु नौज़ुबिल्लाह शहरज़ादा है, तो कहते हैं कि अगर हम कहेंगे तो हम वो इस तरह से वो बातें कहते हैं। देखो किस तरह वो बयान करते हैं आपके लिए मिसालें, तो भटक गए तो नहीं, वो इस्तात रखते रास्ते की बहुत बाबरकत है वो जात, अगर वो बना ले तेरे लिए इससे बेहतर बागात बहते हैं उसके नीचे नहरें, और वो बना ले तेरे लिए मोहल्लात को। अल्लाह ताला कादिर, अल्लाह ताला चाहे तो सब चीज कर सकते हैं, बल्कि उन्होंने झुटलाया क़यामत की घड़ी को और तैयार किया, और उनके वास्ते उन्होंने झुटलाया क़यामत को, भड़कती हुई उनकी क़यामत को इनकार करने की वजह से क्या उनके लिए भड़कती हुई आग, आखिरत का इनकार किया इसलिए उनके लिए भड़कती आगे। जब वो देखेंगे उसको कि दूर की जगह से वो सुन लेंगे उसका गजब, यानी दोज़ख को दूर से आपको देख लेंगे और समझ जाएंगे कि वो जोश मारे, और जोश की आवाज मतलब उसकी जो आवाज याद करेंगे उसको देखकर समझ जाएंगे। और जब डाली जाएंगे उसमें एक जगह पर तंग जकड़े हुए होंगे, पुकारेंगे उसी जगह मौत को, मतलब उस दिन जब डाले जाएंगे तो बिल्कुल तंग, उनको क्या होगी आगे से तंग कर दी जाएगी, तो क्या करेंगे उस दिन, क्या करेंगे उसके, क्योंकि जिंदगी में तो देखिए इंसान को जब भी तकलीफ आती है कहते वो राहत के लिए क्या करता है, मौत को तब पुकारता है, तो तुम भी क्या करेंगे मौत को पुकारेंगे। ना तुम पुकारो आज मौत को एक और पुकारो मौतों को बहुत सी, कह दीजिए क्यों ना, मतलब उस दिन एक मौत पुकारो कई मौत पुकारो, तुमको मौत आने वाली नहीं। कह दीजिए क्या ये बेहतर है, ये बागात हमेशा की वो जो वादा किए गए थे मुत्तकी लोग उनके लिए है जजा बदला और पलटने की जगह, मतलब ये उनको बताया जाएगा, तंज मारा गया कि ये बेहतर है, तुम्हारी आग बेहतर है कि मुत्तकियों को जो बागात वादा किया वो बेहतर है, उनके लिए जो उसमें वो चाहेंगे वो हमेशा रहने वाले हैं, उस पर तेरे रब की का एक वादा सवाल किए गए, और जिस दिन वो जमा करेंगे उनको और जिनकी वो इबादत करते थे अल्लाह के सिवा, तो वो कहेंगे क्या तुमने गुमराह किया था मेरे बंदों को, ये या वो भटक गए थे रास्ते के, उनसे पूछा गया क्या कि तुमने जिससे वो शरीक चला था, तो उनसे पूछा गया क्या तुमने भटका दिया था, वो कहेंगे पाक है तो नहीं वो जायज हमारे लिए कि हम बनाते तेरे सिवा कोई दोस्त, लेकिन तूने सामान्य जिंदगी दी उनको और उनके बाप दादा को, यहाँ तक कि वो भूल गए जिक्र को। अल्लाह ताला वो कहेंगे कि मतलब तूने उनको बहुत नवाजा था तो क्या हो गया, वो लोग अल्लाह के जिक्र को भूल गए और कानून थे वो हलाक होने वाले, तो तहकीक उन्होंने झुटलाया तुमको बावजूद उसके जो तुम कहते हो, तो नहीं तुम इसे रख सकते फेरने की और ना किसी मदद की, और जो कोई तुम में से जुल्म करेगा
تو چکھے گا اس کو عذاب بہت بڑا. ظلم کریں، ظلم سے مطلب یہاں پر شرک ہے. اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے رسولوں میں سے مگر بھیجا اس کو وہ کھاتے تھے کھانا اور چلتے تھے بازاروں میں، اور بنایا ہم نے اسی تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش. کیا تم صبر کرو گے؟ اور کیا ہے تیرا رب دیکھنے والا. یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ حدیث سے آپ سے سب سے پہلے جتنے بھی رسول ہیں وہ سب بھی ویسے تھے، انسان تھے، کھانا کھاتے تھے، بازار میں پھرتے تھے. تو یہاں پر تو آپ سب کو صبر کرنے کی تاکید کر دی جا رہی ہے کہ صبر کریے. بلکہ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهبني الدرجات العلى